Very good afternoon, students. So, students, today we are going to discuss our chapter number 3. The name of the chapter is The King's Magic Drum. So, beta, from the topic, it's very clear that in this story we are going to discuss about the drum that has magic, and it is a drum of a king. So, let's read the story. So, in this story, what happened? The extract you are about to read is a Nigerian folk tale. Folk tale, it's a kind of tale that is related to people. It is about a king who has a magic drum and a tortoise who wants to take the drum from the king. So this is a story about a king who has a magic drum, and this story is also about a tortoise who wants to take the drum from the magic. So let's read what happened in the chapter. So Ephraim Duke was an ancient king of Calabar. He was a peaceful man and did not like war. He had a wonderful drum, the property of which, when it was beaten, was always to provide plenty of good food and drink. So what was the quality of this magic drum? So Ephraim Duke, he was an ancient king of Calabar, or he was a peaceful man. So what he had a wonderful drum. The drum has a magic, and iski property kya thi? What was its characteristic? Then whenever it was beaten, it provides a plenty, means enough food it provides and drink. So whenever, jab bhi koi bhi country declare karti thi war against him, he used to call all his enemies together. मतलब वो सारे के सारे enemies को call करता था and beat his drum, और इस ड्रम को बीट करता था. Then to the surprise of everyone, instead of fighting, तो सबके लिए most amazing thing क्या होती थी, surprising क्या होता था कि वो instead of fighting, fight करने की बजाय people को क्या मिलता था? They found tables spread with all sorts of dishes, means amazing food they had. The food includes fish, fufu, palm oil, chopped soup, cooked jams, plenty of palm wine for everybody. So beta, it's a kind of delicious food that is liked by people. तो वो सारा का सारा food provide करता था, मिलता था लोगों को खाने के लिए. In this way, Ephraim Duke kept all the country quiet and sent his animals away with full stomachs. तो क्या होता था कि जब वो अपने एनिमल्स को कॉल करता था, उनको अच्छा डिलीशियस फूड प्रोवाइड ऑफ़र करता था, और जब वो जाते थे दे वर वेरी क्वाइट, दे वर वेरी सेटिस्फाइड. तो वो क्या होता था, इंस्टेड ऑफ वार क्या होता था, उनका माइंड क्या होता था, हैप्पी होता था और कंटेंटेड होता, सेटिस्फाई होता था. There was only one drawback. Drawback होती है बेटा कमी. One drawback to possessing the drum, and that was, मतलब ड्रम को बजाने की एक ड्रॉबैक भी था. ठीक है, क्या था वो? कि if the owner of the drum walked over any stick, कि अगर ड्रम का ओनर किसी भी स्टिक के ऊपर वॉक करेगा रोड के ऊपर, और stepped over a fallen tree, और गिरे हुए पेड़ के ऊपर से स्टेप आउट करेगा, ऑल द फूड वुड इमीडिएटली गो बैड. सारा का सारा जो डिलीशियस फूड वो होगा वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा. मोरओवर 300 Igbo men would appear with sticks and whips and beat the owner of the drum, and all the invited guests were वेरी स्वेयरली. मतलब क्या है बेटा, इसका ड्रॉबैक क्या था इसका? वो ये था कि अगर इसको कोई भी फॉलन ट्री के पास में से लेके गुजरेगा तो क्या हो जाएगा, मतलब जो फूड हो जाएगा इट विल टर्न बैड, एंड और 300 के करीब लोग आएंगे, वो क्या हो जाएंगे, जो कि स्टिक्स, जिनके पास स्टिक्स होंगी, और वो विप्स होंगे, जो कि एक लेदर का एक स्ट्रिप होती है दैट हैज़ हैंडल ऑल्सो, दैट इज़ यूज टू बीट एनिमल्स. ठीक है, तो विप्स चाबुक भी बोलते हैं इसको. ठीक है, और वो ड्रम के जो ओनर को मारने लगेंगे, और जो भी गेस्ट इनवाइट हुए होंगे उनको भी मारेंगे. Every few months the king used to issue invitation to all the subjects. Subjects होता है बेटा कंट्री के लोग. ठीक है, तो
एवरी फ्यू मंथ्स द किंग, मतलब कुछ टाइम तक जो किंग था वो क्या करता था, इनवाइट करता था अपने लोगों को, ठीक है, टू कम टू अ बिग फेस्ट। फेस्ट क्या होता है बेटा, इट्स अ काइंड ऑफ पार्टी, ठीक है। इवन द वाइल्ड एनिमल्स वर इन्वाइटेड फॉर इन दोज डेज there was no trouble as they were very friendly with man। तो बेटा एनिमल्स दे वर वेरी फ्रेंडली, दे डोंट कॉज एनी प्रॉब्लम टू द ह्यूमन बींग्स। तो दोनों को वो वाइल्ड एनिमल्स को भी और अपने जो कंट्री के लोग थे उनको भी इनवाइट करता था, एंड कोई ट्रबल नहीं होती थी, बिकॉज दे डोंट किल वन अनदर, एक दूसरे के मारते नहीं थे वो, ठीक है। ऑल द पीपल एंड द एनिमल्स एज वेल वर envious of the king's drum and wanted to possess it। मतलब जो क्या थे जो भी लोग थे वहाँ उसकी कंट्री के और जो एनिमल्स थे, दे वांटेड टू हैव दैट मैजिक ड्रम। और उनको इस चीज़ के लिए क्या होती थी, एनवियस होता बेटा जेलस भी होती थी इस चीज़ की कि वो किंग के ड्रम को ओन करना चाहते थे। बट द किंग वुड नॉट पार्ट विद इट, लेकिन वो इस चीज़ को किसी से शेयर नहीं करता था। वन मॉर्निंग for Adam, the king's wife, another character is introduced here। तो वो king की wife थी, for Adam, took her little daughter down to the spring to wash her as she was covered with yaws। yaws होते हैं but it's a kind of skin disease, ठीक है, which are bad sores, मतलब it's a kind of redness infection, ठीक है, ऑल ओवर द बॉडी। तो मतलब वो वॉश करने के लिए, स्प्रिंग होती है इट्स अ काइंड ऑफ वाटर बॉडी, तो वो क्या करती है उसको वॉश करने के लिए उसकी स्किन डिसीज़ को, जो कि बहुत वो पेनफुल था, शी वॉज इन पेन, एक्सट्रीम पेन, इन्फेक्शन था, तो उसको वॉश, उसकी बॉडी जो उसकी बॉडी के ऊपर सारा स्किन इन्फेक्शन था उसको वॉश करवाने के लिए आती है। द टॉर्टोइज हैपन टू बी अप पाम ट्री। तो मतलब जहाँ पे वो आती है वहाँ पे क्या होता है, अचानक से मतलब वो एक टॉर्टोइज होता है जो कि पाम ट्री के ऊपर होता है। जस्ट ओवर द स्प्रिंग कटिंग नट्स फॉर हिज मिड डे मील। तो वो क्या कर रहा होता है अपने मिड डे मील के लिए, दोपहर के खाने के लिए वो नट्स कट कर रहा होता है। एंड वाइल ही वॉज कटिंग वन ऑफ द नट्स फेल टू द ग्राउंड जस्ट इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड। तो जब वो कट कर रहा होता है अचानक से एक नट गिर जाती है चाइल्ड के पैर के पास, ठीक है, चाइल्ड के बिल्कुल उसके सामने। द लिटिल गर्ल सीइंग द गुड फूड क्राइड फॉर इट। तो जब देखती है वो क्राई करती है, एंड शी वॉन्टेड टू हैव दैट नट, एंड द मदर नॉट नोइंग एनी बेटर पिक्ड अप द पाम नट एंड गेव इट टू हर डॉटर डायरेक्टली द टॉर्टोइज सॉ दिस। तो एकदम से क्या होता है, जब उसकी मदर को दिख जाती है, वो अपनी बेटी को क्राई करते देखती है, तो वो क्या करती है अपने बच्चे को दे देती है। तो टॉर्टोइज इस सबको देख लेता है। ही क्लाइम डाउन द ट्री, नीचे आता है, एंड आस्क द वुमन वेयर हिज पाम नट वॉज। तो पूछता है कि उसकी पाम नट कहाँ पे है। शी रिप्लाइड, वो आंसर करती है दैट शी हैड नॉट गिवन इट टू हर चाइल्ड, दैट शी हैड गिवन इट टू हर चाइल्ड टू इट। शी वॉज वेरी ऑनेस्ट लेडी। तो उसको बताती है कि उसने वो अपने बच्चे को दे दिया खाने के लिए। दैन द टॉर्टोइज हु वेरी मच वॉन्टेड, लेकिन फिर क्या होता है, जो टॉर्टोइज होता है वो क्या वांट करता है, क्या चाहता है, द किंग्स ड्रम। सो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस पेज नंबर 24। आई होप you have understood. So let's read page number 9.